Hello everybody, how are you? Next topic is fuels. Fuels are organic compound made up of hydrogen and carbon, hence also known as hydrocarbons, and release heat energy after burning. The fuels can be defined. Hydrocarbons, those release energy, heat energy after burning, are fuels, and categorized into three groups on the basis of physical property. One is solid, second liquid, and third gas. Fuels, those are solid in state at normal temperature and pressure. इसको ध्यान में रखिएगा, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी. नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मल प्रेशर मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो फ्यूल्स, दोज आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी सॉलिड. जो लिक्विड होंगे वो लिक्विड कहलाएंगे और जो गैसियस फॉर्म में होंगे वो गैसियस कहलाएंगे. सॉलिड फ्यूल्स में लाइक wood and coal, and coal categorized into 4 types on the basis of percentage of carbon. One is anthracite, second lignite, third bituminous, फोर्थ इज पीट. एक मिनट, ये आप इसको ऐसे कर दीजिए. बिटुमिनस एंड लिग्नाइट. एंथ्रासाइट में कार्बन मोर देन 95% होता है. इट्स ए सुपीरियर coal, and peat is inferior type of coal. इसमें कार्बन मिनिमम होता है. सेकेंड, लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल and kerosene oil. Petrol also known as gasoline. These are liquid at normal temperature and pressure. Third, gaseous fuels like
LPG, LNG, CNG, CBG, PNG, बायोगैस और गोबर गैस, सेल गैस, हाइड्रोजन CNG, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, सेमी वाटर गैस एंड हाइड्रोजन। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CBG कंप्रेस्ड बायो गैस, PNG पाइप्ड नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस जो पाइप से किचन तक सप्लाई होगी, दैट विल बी कॉल्ड पाइप्ड नेचुरल गैस। इनके केमिकल कंपोजिशन को देखें तो LPG में मेन कंपोनेंट्स आर ब्यूटेन एंड प्रोपेन। In LNG, CNG, CBG, PNG, biogas, cell gas, main components are methane, also known as Mars gas. In HCNG, hydrogen and methane. In water gas, mainly carbon monoxide and hydrogen. In producer gas, carbon monoxide and nitrogen. And in semi water gas, carbon monoxide, hydrogen and nitrogen. And in hydrogen, mainly is hydrogen, only hydrogen. Butane and propane, these are main components of LPG, liquefied petroleum gas, that is used in kitchen for cooking purpose, also known as cooking gas. Main components are butane and propane.
both are colorless, odorless, and highly inflammable. Its leakage cannot be detected by smell and is used for cooking in kitchen. And to detect its leakage, a pungent chemical mixes with it, that is ethyl mercaptan, also known as thioethanol or C2H5SH. It's a sulfur compound mixes with LPG to detect its leakage. And this cooking gas supply in cylinders, and these cylinders are for three weight. One is of 5 kilogram, second 14.2 kilogram, and third 19 kilogram. 5 kilogram and 14.2 kilogram cylinders used for domestic purpose, and central government provides subsidy, and this subsidy is withdrawing step by process. 19 kilogram cylinder used for commercial purpose, और इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। जैसे जैसे हम सॉलिड से लिक्विड से गैसियस फ्यूल की ओर बढ़ेंगे, इसकी कैलोरी वैल्यू बढ़ती जाती है। Calorie value of fuels increases from solid to gaseous fuel. What is calorie value? Calorie value is the released total heat energy in a definite amount of fuel. Like 1 kilogram fuel releases the amount of heat energy will be the calorie value of that fuel. गैसियस फ्यूल की कैलोरी वैल्यू अधिक होती है, जबकि सॉलिड फ्यूल की कैलोरी वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे हम सॉलिड से गैसियस फ्यूल की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर इस फ्यूल का यूज हम इंजन में करते हैं तो इंजन को हमने बताया था, इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल को बर्न किया जाता है। अगर फ्यूल की कैलोरी वैल्यू अधिक होगी तो हीट एनर्जी अधिक प्रोड्यूस होगी, कैलोरी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी तो इंजन की इफिशियंसी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम सॉलिड से गैसियस फ्यूल इंजन की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसकी इफिशियंसी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम
सॉलिड से गैसियस फ्यूल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी इनफ्लेमेबिलिटी बढ़ती जाती है। गैसियस फ्यूल आर हाईली इनफ्लेमेबल एंड सॉलिड फ्यूल्स आर लेस इनफ्लेमेबल। जैसे जैसे हम गैस से सॉलिड फ्यूल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स ए टेम्परेचर ऑफ ए फ्यूल एट विच दैट स्टार्ट्स टू इग्नाइट इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट फ्यूल। गैसियस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, आप उसको एक लाइटर की स्पार्किंग से ही जला देते हैं, जबकि सॉलिड फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कोल या वुड को जलाने के लिए कभी कभी पूरी माचिस खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी वो नहीं जलता है। तो गैसियस फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर लो और सॉलिड का हाई होता है। जैसे जैसे हम गैस से सॉलिड फ्यूल की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इससे रिलीज होने वाली पॉल्यूटिंग गैसेस बढ़ती जाती हैं। गैसियस फ्यूल रिलीज लेस पॉल्यूटिंग गैसेस while सॉलिड फ्यूल रिलीज मोर पॉल्यूटिंग गैसेस। जैसे जैसे हम गैस से सॉलिड फ्यूल की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनसे जलने के बाद बचने वाले वेस्ट बढ़ते जाते हैं। गैसियस फ्यूल के जलने पर कम और सॉलिड फ्यूल के जलने पर अधिक वेस्ट बचते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू हाई कैलोरी वैल्यू, लो पॉल्यूटिंग गैसेस एंड लो रेजिड्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोटिंग गैसियस फ्यूल्स। कभी हम कुकिंग के लिए सॉलिड फ्यूल का यूज किया करते थे लाइक कोल और वुड, फिर हम लिक्विड फ्यूल का यूज करने लगे लाइक केरोसिन ऑयल, और आज हम गैसियस फ्यूल का यूज करते हैं। कभी हम व्हीकल में सॉलिड फ्यूल का यूज करते थे जैसे स्टीम इंजन इन रेल, फिर हम लिक्विड फ्यूल इंजन का यूज करने लगे लाइक पेट्रोल डीजल, और आज हम गैसियस फ्यूल का यूज करते हैं, यानी सीएनजी एलपीजी से चलने वाले गैस। अब सीएनजी एलपीजी से चलने वाले क्या रेल इंजन हैं? हां, फर्स्ट सीएनजी इंजन रेल इंजन फर्स्ट सीएनजी रेल इंजन स्टार्ट हुआ फ्रॉम रेवाड़ी टू रोहतक। बोथ रेलवे स्टेशन आर इन हरियाणा स्टेट। इंजन कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल को बर्न किया जाता है। अगर फ्यूल की बर्निंग इंजन के बाहर होती है दैट इंजन विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। इंजन इन विच फ्यूल बर्न्स आउटसाइड द इंजन। और अगर फ्यूल को हम इंजन के अंदर बर्न करते हैं ये इंटरनल कंबंशन इंजन कहलाएगा। एक्सटर्नल कंबंशन इंजन लाइक स्टीम इंजन।
इंटरनल कंबंशन इंजन में फ्यूल इंजन के अंदर बर्न होता है, इसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। इसमें फ्यूल का कंजप्शन कम होता है। इसकी इफिशियंसी अधिक होती है। ड्यू टू हाई लॉस ऑफ एनर्जी, हाई कंजप्शन ऑफ फ्यूल एंड लो इफिशियंसी, एक्सटर्नल कंबंशन इंजन का यूज अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रमोट कर रहे हैं इंटरनल कंबंशन इंजन को ड्यू टू हाई इफिशियंसी, लो कंजप्शन ऑफ फ्यूल एंड लो लॉस ऑफ एनर्जी। इंटरनल कंबंशन आर प्रमोटिंग लाइक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ये सब इंटरनल कंबंशन इंजन है। इंटरनल कंबंशन इंजन में अगर हम फ्यूल के रूप में पेट्रोल का यूज करते हैं तो पेट्रोल इंजन कहलाएगा, और अगर हम डीजल का यूज करते हैं तो इट विल बी कॉल्ड डीजल इंजन। डीजल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन। ध्यान रखिएगा, जहां कहीं हमें ज्यादा पावर वाले काम कराने होते हैं वहां हम डीजल इंजन का यूज करते हैं, लाइक इन ट्रक, जेसीबी मशीन, बस, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, इन सब में हम डीजल इंजन का यूज करते हैं बिकॉज डीजल इंजन इज मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल इंजन। और इन इंटरनल कंबंशन इंजन में कभी कभी फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाता है, तब इंजन से एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस मेटेलिक साउंड इज कॉल्ड नोकिंग। तो नोकिंग डिफाइंड एज ए मेटेलिक साउंड produced by internal combustion engine। किस कारण से? ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल की बर्निंग इनकम्प्लीट होगी, हीट एनर्जी कम रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी, तो इंजन की इफिशियंसी कम हो जाती है। तो इन नोकिंग इफिशियंसी ऑफ इंजन रिड्यूसेस। So knocking is a metallic sound produced by internal combustion engine due to incomplete burning of fuel that results in reduce in efficiency of engine। नोकिंग को रिड्यूस करने के लिए फ्यूल में एक केमिकल मिक्स किया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटी नोकिंग सब्सटेंस। क्या है ये? Substances those mixes with fuel to reduce
नोकिंग। नोकिंग को रिड्यूस करने के लिए इन फ्यूल में जो केमिकल मिक्स किए जाते हैं, दोज केमिकल्स आर कॉल्ड एंटी नोकिंग सब्सटेंस। ये हैं टेट्रा इथाइल लेड और TEL और C2H5 whole 4PV. This chemical mixes in petrol to reduce knocking, and sulfur mixes with diesel to reduce knocking of diesel engine. पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड और डीजल में सल्फर मिक्स किया जाता है और ये दोनों ही एंटी नोकिंग सब्सटेंस हैं। टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिक्स करते हैं और यही इंजन में पहुंच करके जब बर्न होता है तो दिस इज द इथाइल ग्रुप, and ethyl release heat energy that increases efficiency of engine and lead become separate. ये अलग हो जाता है और यही सेपरेट होकर के इंजन से बाहर निकल करके जब एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज बढ़ती है और यही रेस्पिरेशन से जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में लेड पहुंचता है और लेड के बढ़ जाने से किडनी डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर डैमेज जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो ड्यू टू द एक्सेस ऑफ लेड इन ह्यूमन बॉडी इट रिजल्ट्स हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड लीवर डैमेज लाइक सिम्टम्स विजिबल। मीन्स लेड इज ए पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। इसलिए अब पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिक्स नहीं करते हैं। तब इस तरह के पेट्रोल को जिसमें टेट्रा इथाइल लेड मिक्स नहीं किया जाता है उसी को ग्रीन पेट्रोल और ग्रीन फ्यूल और अनलेडेड पेट्रोल कहा जाता है। तो अनलेडेड पेट्रोल और ग्रीन फ्यूल मींस पेट्रोल विदाउट टेट्रा इथाइल लेड। Second, sulfur is a anti-knocking substance mixes with डीजल और इसका जो क्वांटिटी थी वो 500 ppm तक थी। ppm पार्ट्स पर मिलियन। फाइव ppm सल्फर मिक्सेस विद डीजल और यही सल्फर जब इंजन से होता हुआ एटमॉस्फेयर में आता है तो दिस सल्फर रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। और यही सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं तो इसके एक्सेस हो जाने से निमोनिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस इम्यूनिटी अगेंस्ट निमोनिया इन ह्यूमन बॉडी। एटमॉस्फेयर में यही सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड विद द रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन मिक्सेस विद रेन वाटर द रेन वाटर बिकम एसिडिक इन नेचर। यही सल्फ्यूरिक एसिड जब रेन वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है एंड द रेन दैट्स वाटर इज एसिडिक इन नेचर दैट रेन विल बी कॉल्ड एसिड रेन। तो एसिड रेन का मतलब क्या हो गया कि वो रेन जिसका वाटर एसिडिक नेचर का होता है। जनरली वो न्यूट्रल होता है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स हो जाने से या नाइट्रिक एसिड मिक्स हो जाने से वो एसिडिक नेचर का हो गया। तो व्हेन रेन वाटर बिकम एसिडिक ड्यू टू द मिक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड द रेन विल बी कॉल्ड एसिड रेन।
और यही एसिड रेन जब पॉन्ड्स पर होती है, रिवर्स में होती है, तो एक्वेटिक लाइफ वहां खत्म हो जाती है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स पर जब ये गिरती है एसिड रेन, तो उस पर येलो स्पॉट पड़ने लगते हैं, जैसे ताजमहल पर। ये कहलाई स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर इज नॉट ए डिसीज, इट्स ए इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, जिसमें उस पर येलो स्पॉट पड़ जाते हैं। ताजमहल की जो ब्यूटी है वो उसकी बनावट में कम, उसकी वाइटनेस में ज्यादा है, इसलिए उसको स्पेशल नाइट में देखा जाता है, फुल मून नाइट में देखा जाता है उसको, पूर्णिमा की रात। तो स्टोन कैंसर इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स लाइक ऑन ताजमहल। और इसी एसिड रेन के कारण एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स डिके होने लगते हैं, तब इसे हम स्टोन लेप्रोसी कहते हैं। तो स्टोन लेप्रोसी इज आल्सो इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स इन विच एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स डिकेड। तो स्टोन कैंसर एंड स्टोन लेप्रोसी आर नॉट डिसीजेज, बोथ आर द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एंशिएंट मॉन्यूमेंट। स्टोन कैंसर में येलो स्पॉट पड़ते हैं और स्टोन लेप्रोसी में मॉन्यूमेंट्स डिके होने लगते हैं। मतलब सल्फर इज आल्सो पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। तब इस सल्फर के क्वांटिटी को कम किया जाता है, और कम करते करते इसको कर देते हैं 50 ppm तक। तब इस डीजल को कहा जाता है यूरो 4 और BS4 डीजल। और अल्ट्रा लो सल्फर डीजल ULSD। तो अल्ट्रा लो सल्फर डीजल मींस वो डीजल जिसमें सल्फर 50 ppm तक होता है, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल कहलाता है। फ्यूल की नोकिंग को मेजर करने के लिए एक मेजरमेंट तैयार किया जाता है। दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। So knocking of a fuel measures by a measurement. This measurement is called octane number. In petrol and cetane number in diesel. So octane number and cetane number both are measurements to measure the knocking of petrol and diesel respectively, and these octane number and cetane number are inversely proportionate to knocking. यानी जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा, नोकिंग उतनी ही लो होगी, और नोकिंग लो होगी तो इफिशिएंसी हाई होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट, हाई ऑक्टेन पेट्रोल इज हाईली एफिशिएंट पेट्रोल, हाई सीटेन डीजल इज हाईली इफिशिएंट डीजल। तो ऑक्टेन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नोकिंग, एंड नोकिंग इज inversely proportional to efficiency of engine. So high octane petrol means highly efficient petrol. So octane number and cetane number both are measurements to measure the knocking of petrol and diesel respectively. गैसियस फ्यूल की कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और गैसियस फ्यूल में भी हाइड्रोजन की कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है।
प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया, दैट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन। हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इस यूनिवर्स में सबसे अधिक परसेंटेज में मिलता है। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन हाईली परसेंटेज approximately 93% of total elements in universe। So it's present in highly abundant। Second, its calorie value is high। So due to high calorie value, और इसकी कैलोरी वैल्यू गैसोलीन यानी पेट्रोल के कंपेरेटिवली 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर देन पेट्रोल। और ये इको फ्रेंडली है, यानी जलने के बाद इससे कोई भी पॉल्यूटिंग गैस रिलीज नहीं होती है। इको फ्रेंडली। रिलीज नो पॉल्यूटिंग गैसेस। एंड इट्स ए रिन्यूएबल, means reusable source of energy। यानी इसको हम रीयूज कर सकते हैं। कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको रीयूज नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। लेकिन हाइड्रोजन इज ए रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पॉल्यूटिंग गैसेस जीरो निकलती है, इससे कोई गैस निकलती ही नहीं है जलने के बाद, जीरो इमिशन। तो हाइड्रोजन को हम प्रमोट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सीएनजी के साथ भी इसको मिक्स किया जाता है, इसको हाइड्रोजन ब्लेंडिंग कहा जाता है। ब्लेंडिंग मींस मिक्सिंग, व्हेन हाइड्रोजन मिक्सेस विद सीएनजी। और इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में शुरू किया गया है। जो सिटी बस हैं, सीएनजी वाली लो फ्लोर बस, उसमें करीब 50 बसेस को HCNG से चलाया जा रहा है फॉर द पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये कि हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट on this earth। It present in the form of compound। किस कंपाउंड में? H2O यानी वाटर के साथ, या फिर हाइड्रोकार्बन्स के साथ। और इनको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तब इसको यूज करेंगे। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस इस समय थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए एक्सट्रैक्टेड हाइड्रोजन बिकम मोर एक्सपेंसिव। इन प्रेजेंट टाइम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन
की जो कॉस्ट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 350 रुपीज। अब इसी को रिड्यूस करना है बाय द एंड ऑफ 2030 तक, कितना, अप टू 160 रुपीज पर किलोग्राम। यानी जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी, तब हम इसका यूज इजीली कर सकेंगे। और यहां पर एक मिशन और भी स्टार्ट किया गया, GHCO, ग्रीन हाइड्रोजन कंजप्शन ऑब्लिगेशन। यानी जो इंजन बनाने वाली कंपनी है, यानी मोटर व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनी है, उनको कहा जाए कि ये इस तरह के इंजन डेवलप करें जिनमें हाइड्रोजन का यूज किया जा सके। ये एक ऑब्लिगेशन तैयार कर दिया जाए, एक बाध्यता हो जाए, ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर सकें, इको फ्रेंडली व्हीकल तैयार करें। और ये हाइड्रोजन 3 तरह का हो जाता है। One is green hydrogen, means only production of hydrogen by इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और इसमें केवल हाइड्रोजन का ही प्रोडक्शन होता है, ओनली हाइड्रोजन। नो अदर इमिशन। सेकेंड इज ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का भी इमिशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन डाइऑक्साइड and carbon monoxide. And third is blue hydrogen. Production of hydrogen with carbon dioxide and carbon monoxide, और इसमें प्रोड्यूस होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर रिकैप्चर्ड कर दिया जाता है फॉर रीयूज। CO2 एंड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैन बी रिकैप्चर्ड। फॉर रीयूज। तो ग्रीन हाइड्रोजन मींस प्रोडक्शन ओनली ऑफ हाइड्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मींस ब्रेकिंग। तो जब हम किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो दिस सॉल्यूशन बिकम आयनाइज्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन से H2O से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये H आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। और चूंकि वाटर की हो रही है इसलिए हाइड्रोलिसिस कहलाएगी।
इंडिया में जितने भी पेट्रोलियम सब्सटेंसेस का कंजप्शन होता है उसका हम 20 to 25% ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। 20 to 25% ऑफ टोटल पेट्रोलियम कंजप्शन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इससे ज्यादा हम प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन केवल इतना ही है क्योंकि पेट्रोलियम सब्सटेंस के रिजर्वर हमारे यहां है ही नहीं। बाकी जो बच जाता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। 70 to 75% पेट्रोलियम इंपोर्ट किया जाता है। और जिस समय आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब कोई भी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता है तो वो अपनी लोकल करेंसी में नहीं, उसके लिए एक अलग से करेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन करेंसी। इंडिया जिस इंटरवेंशन करेंसी में इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता है वो है डॉलर, और हमारी रुपया ये लोकल या नेशनल या डोमेस्टिक करेंसी है। और इस समय रुपए की कीमत लगातार कम होती जाती है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, तो हमें ज्यादा रुपया पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम एक ऐसे सब्स्टिट्यूट पर काम कर रहे हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो इसके लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम पेट्रोलियम सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन को बढ़ाएं तो हमें अपना रुपया कम पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पेट्रोलियम सब्सटेंसेस के रिजर्वायर हमारे यहां है ही नहीं। दूसरा कि हम सब्स्टिट्यूट पर काम करें, तो सब्स्टिट्यूट हमारे यहां इजीली अवेलेबल है, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सुगर केन। शुगर केन से हमें दो चीजें मिलती हैं, वन इज शुगर एंड सेकंड इज इथाइल एल्कोहल। और जो गन्ने का प्राइस डिफाइन किया जाता है ये शुगर की परसेंटेज के आधार पर डिफाइन करते हैं और उसकी कीमत फार्मर को दे दी जाती है। लेकिन इससे मिलने वाला जो इथाइल एल्कोहल है उसके बिकने से जो पैसा आता है उसको रख लेती है स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में ऐसी भी है जिनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू इथाइल एल्कोहल के बिकने से मिलता है, लाइक झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू इथाइल एल्कोहल के बिकने से मिलता है। अब इसी इथाइल एल्कोहल को अगर हम पेट्रोल में मिक्स कर दें तो जितना हम मिक्स करेंगे उतना हम पेट्रोल कम इंपोर्ट करेंगे, हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी। तब इसको मिक्स किया जाता है पेट्रोल में, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल विद पेट्रोल। द पेट्रोल के साथ इथेनॉल, this ethanol is also known as ethyl alcohol. C2H5OH mixes with 5 to 15%। अभी तक तो केवल 10% तक मिक्स किया जाता है, इसको इन फ्यूचर 15%, इसको बढ़ा करके फिर 20% तक किया जाएगा। इस इथाइल एल्कोहल मिक्स पेट्रोल को गैसोहॉल और प्रीमियम
पेट्रोल और स्पीड पेट्रोल कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम और स्पीड पेट्रोल? सीधा सा मतलब पेट्रोल विद इथाइल एल्कोहल। जब आप अपने व्हीकल में पेट्रोल डलवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो पूछता है आपसे वो सादा या प्रीमियम। तो प्रीमियम मींस इथाइल एल्कोहल विद इथेनॉल। अब ऐसा क्यों करते हैं कि इथेनॉल इज ए गुड फ्यूअल, इट्स कैलोरी वैल्यू इज मोर देन दैट ऑफ पेट्रोल, तो इंजन की इफिशियंसी बढ़ेगी। इथाइल अल्कोहल के बर्न होने से जो रिलीज होने वाली पॉल्यूटिंग गैसेज हैं वो कम होती हैं, तो ये इको फ्रेंडली भी है। और इसके बिकने से जो पैसा आएगा उसका कुछ पैसा फार्मर्स को दिया जाएगा, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। और जितना पेट्रोल में हम इथाइल अल्कोहल मिक्स करेंगे उतना पेट्रोल हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारी फॉरेन करेंसी भी बचेगी। इसी तरह से डीजल में भी मिक्स किया जाता है। मिथाइल एल्कोहल और मीथेनॉल और वुड एल्कोहल CH3OH। when methyl alcohol mixes with diesel, it's called dizohol और प्रीमियम डीजल। और ध्यान रखिएगा कि यही मिथाइल एल्कोहल के मरने से लोग, पीने से लोग मरते हैं, यही पॉइजनस एल्कोहल भी कहलाता है। तो मिथाइल एल्कोहल इज नॉट फॉर ड्रिंकिंग, इट्स पॉइजनस। इसके पीने से सबसे पहले ऑप्टिक नर्व डैमेज होती हैं, व्यक्ति पहले ब्लाइंड यानी अंधा होता है और फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। टाइप्स ऑफ फ्यूअल्स on the basis of source. Fuels are of two types. One is fossil fuels, means fuels obtained from fossils. Fossils means remains of organism. ऑर्गेनिज्म के जो अवशेष बच जाते हैं, जो रिमेन्स बच जाते हैं, उन्हीं को जब हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस, ऑल दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। Second, biofuels. Fuels those obtained from organism. Like biodiesel, obtained from seeds of Jatropha plant. शुगर केन से, मेज, सनफ्लावर,
इनसे मिलने वाले हाइड्रोकार्बन्स को बायोफ्यूल्स कहा जाता है। बायोडीजल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खूब होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांस फैट को रिड्यूस करने के लिए, उसके कंजप्शन को कम करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए, ये जो स्ट्रीट फूड बेचने वाले लोग होते हैं ना, जो समोसे भटूरे वगैरह जिस ऑयल में बार बार तलते हैं, उस ऑयल को वो खरीद लेगी गवर्नमेंट, और उसी ऑयल को फिर रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल के रूप में यूज किया जाएगा। तो कल मैंने आपको शायद बताया था कि ट्रांस फैट को रिड्यूस करने के लिए इंडिया 2022 तक इसकी परसेंटेज को 2% करने वाली है, जबकि WHO कहता है कि 2023 तक करिए, लेकिन इंडिया उससे पहले ही करने वाला है, क्योंकि ट्रांस फैट हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। एंड नाउ फ्यूल्स यूज्ड इन रॉकेट।